हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपक बंसल। आज मैं आपको बताऊंगा 15 डेली यूज़ वोकेबलरी वर्ड्स। ये वर्ड्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। दिस इज़ चैप्टर 4। इससे पहले के 3 चैप्टर्स भी आप चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्लाई। इट मीन्स पालन करना, टू ओबे एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। कॉम्प्लाई मीन्स पालन करना। फॉर एग्जाम्पल, candidates must comply strictly with these instructions. Candidates must comply strictly with these instructions. It means उम्मीदवारों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उम्मीदवारों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। Our next word is imposter. Imposter means ढोंगी, a person who pretends to be somebody else in order to trick other people. Imposter means ढोंगी। For example, he was an imposter who came forward as a doctor. He was an imposter who came forward as a doctor. It means वह एक ढोंगी था जो डॉक्टर के रूप में सामने आया। वह एक ढोंगी था जो डॉक्टर के रूप में सामने आया। Our next word is egocentric. It means अहंकारी, a person who thinks only about himself and not what other people want. Egocentric means अहंकारी. For example, he is egocentric and never considers others. He is egocentric and never considers others. It means वह अहंकारी है और कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। वह अहंकारी है और कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। Our next word is lure. Lure means लुभाना, tempt. Lure means लुभाना. For example, supermarket chains try to lure customers with price discounts. Supermarket chains try to lure customers with price discounts. It means सुपरमार्केट चेन मूल्य छूट से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। सुपरमार्केट चेन मूल्य छूट से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। Our next word is ineffable. Ineffable means अवर्णनीय, too beautiful, great, etc. to describe in words. Ineffable means अवर्णनीय. For example, the beauty of a sunset is ineffable. The beauty of a sunset is ineffable. It means सूर्यास्त की सुंदरता अवर्णनीय है। सूर्यास्त की सुंदरता अवर्णनीय है। Our next word is mollify. Mollify means किसी के क्रोध या परेशानी को कम करना, to make somebody feel less angry or upset. Mollify means किसी के क्रोध या परेशानी को कम करना। For example, he managed to mollify the angry customer. He managed to mollify the angry customer. It means उसने ग्राहकों के गुस्से को कम करने की कोशिश की। उसने ग्राहकों के गुस्से को कम करने की कोशिश की। It means our next word is insipid. It means बेस्वाद या फीका, tasteless or having too little taste. Insipid means बेस्वाद या फीका. For example, she said she is a good cook, but the food she cooked is insipid. She said she is a good cook, but the food she cooked is insipid. It means उसने कहा वह कुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो भोजन उसने बनाया वह बेस्वाद या फीका है। उसने कहा वह कुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो भोजन उसने बनाया वह बेस्वाद या फीका है। Our next word is ebullient. Ebullient means जोशीला, full of confidence and energy. Ebullient means जोशीला, full of confidence and energy. For example, the Prime Minister was in ebullient mood during the speech. The Prime Minister was in ebullient mood during the speech. It means भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जोशीले मूड में थे। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जोशीले मूड में थे। Our next word is plummet. Plummet means अचानक या तेजी से गिरना, to fall suddenly or quickly from a high level or position.
प्लमेट मीन्स अचानक या तेजी से गिरना। फॉर एग्जाम्पल, प्राइजेज ऑफ दी शेयर्स में प्लमेट इन द कमिंग डेज। प्राइजेज ऑफ दी शेयर्स में प्लमेट इन द कमिंग डेज। इट मीन्स शेयर्स की कीमतें आने वाले दिनों में तेजी से गिर सकती हैं। शेयर्स की कीमतें आने वाले दिनों में तेजी से गिर सकती है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज audacious. Audacious means needer, willing to take risk or do something shocking. Audacious means needer. For example, your plan of going abroad is an audacious decision. Your plan of going abroad is an audacious decision. It means विदेश जाने की आपकी योजना एक दुस्साहसिक या निडरता वाली निर्णय है। विदेश जाने की आपकी योजना एक दुस्साहसिक या निडरता वाला निर्णय है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेंच। ट्रेंच मीन्स खाई। ए लॉन्ग डीप होल डग इन द ग्राउंड। ट्रेंच मीन्स खाई। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स डग अ ट्रेंच फॉर गैस पाइपलाइंस। वर्कर्स डग अ ट्रेंच फॉर गैस पाइपलाइंस। इट मीन्स मजदूरों ने गैस पाइपलाइंस के लिए खाई खोदी। मजदूरों ने गैस पाइपलाइंस के लिए खाई खोदी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बरीड इन द सिमेट्री। ही वॉज बरीड इन द सिमेट्री। इट मीन्स उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज न्यूसेंस। इट मीन्स परेशानी या बाधा, ट्रबल और ऑब्स्टेकल। न्यूसेंस मीन्स परेशानी या बाधा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला इन अ हरी। व्हाट अ न्यूसेंस। आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला इन अ हरी। व्हाट अ न्यूसेंस। इट मीन्स मैं जल्दबाजी में अपना छाता भूल गया, क्या परेशानी है, या फिर कैसी परेशानी है। मैं जल्दबाजी में अपना छाता भूल गया, क्या परेशानी है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पैसिमिस्टिक। इट मीन्स निराशावादी। पैसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डीपली पैसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। I am deeply pessimistic about the future. It means मैं भविष्य को लेकर निराशावादी हूँ। मैं भविष्य को लेकर निराशावादी हूँ। Our final word is drench. Drench means पूरी तरह से भिगो देना। To make somebody or something completely wet. Drench means पूरी तरह से भिगो देना। For example, he was completely drenched in sweat. He was completely drenched in sweat. It means वह पसीने में पूरी तरह से भीग गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बिलो ऑन योर फेवरेट पार्ट। और हाँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।